देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Chapter 17 begins with a question of Arjuna about the position of men who are said to be earnest about pursuing the path of self-perfection, worshipping gods and others endowed with faith or reverence, with meager knowledge of scriptural injunctions. Since the three types of faith have thus been separately expounded in this chapter, it has been given the title of the Yoga of Division of Three Kinds of Faith, Shraddhatraya Vibhaga Yoga. In reply, Lord Krishna expounds the nature of faith and classifies the innate faith of men who generally identify with their bodies according to the predominance of three gunas or modes of Prakriti, Sattvika, Rajasika and Tamasika. It is faith which reveals the nature and character of man, but this refers not to the man of wisdom who has transcended the three gunas. The Sattvika worship gods expecting nothing in return. Rajasika worship demigods in bartering spirit, appealing for many favors in return. And Tamasika worship devils and evil spirits to harm others. Destiny of the worshippers vary according to the object of their worship. The Sattvika worshippers go to the gods and attain a celestial body. The Rajasikas are reborn as demigods and Tamasikas as demons. Those who worship not conforming to the scriptures, mortify the body to display various kinds of acts in order to impress and cheat others and are ever puffed up with pride. These men, deeply attached to worldly enjoyments and possess infinite strength to fulfill their plans. They emaciate and weaken their bodies, also torment God dwelling within their own hearts as well as in others. These stupid men's intellect is clouded. They seem to be endowed with Shraddha but do not acknowledge scripture and obey its precepts. They cannot be said to worship God with true faith. Lord Krishna decries them and calls upon Arjuna to hear about different types of food, sacrifice, austerities, and charity under three heads, namely Sattvika, Rajasika, and Tamasika, in order that one may adopt the Sattvika type and reject Rajasika and Tamasika ones. Food. Sattvika food promotes longevity, intelligence, vigor, health, happiness, and cheerfulness. Rajasika food causes suffering, grief, and sickness. Tamasika food gives rise to many diseases. A man loves that very food which partakes of the gunas predominant in him. The disposition of a man can be judged by the kind of food he loves. Sacrifice. Lord Krishna thereafter briefs three types of sacrifice. The sacrifice which is undertaken with an interested motive cannot be wholly Sattvika even if it is performed in accordance with the scriptural injunctions. Otherwise, it becomes Rajasika or Tamasika. A sacrifice that is done as duty, expecting no returns, is Sattvika. Done for mere pomp and show, expecting rewards, is Rajasika. And that which is done not in conformity with scriptural injunctions, no food offered, without sacred chants and devoid of faith, is Tamasika.
Austerities to the body, speech, and mind is described by Lord Krishna. Worship of gods, great souls and elders, purity, uprightness, and non-violence are called the austerity of the body. Words which are truthful, gentle, pleasing, and compassionate, also reciting stotras, reading Ramayana, Bhagavata, and Bhagavad Gita, etc., are austerity of speech. Placidity, cheerfulness of mind, purity of inner feelings, contemplation of God, observing silence are called austerity of the mind. Austerities threefold, Sattvika, Rajasika, and Tamasika, being defined by the Lord. The austerities relating to the body, speech, and mind mentioned above, performed with supreme faith, expecting no return, is called Sattvika. That which is performed for renown, honor, or adoration, for selfish gain, is Rajasika. That which is practiced through perversity, obstinacy, self-mortification, intent to usurp or destroy others is called Tamasika, which is altogether worth abstaining from. Charity. Having defined the three kinds of austerities, Lord Krishna now proceeds to mention the threefold division of charity. That charity alone is wholly sattvika, which is bestowed with a pure sense of duty, without expecting any return, either here or hereafter, at appropriate time and place to a deserving person. What is given in a reluctant and helpless mood, under threat or coercion, in a grudging spirit or expecting some useful service, great or small, later on, is Rajasika. What is given in a cold manner, with unpleasant remarks, without due attention to time and place to an undeserving person, is Tamasika. Lord Krishna glorifies the connection they have with God and how a flaw or defect in the practice of the sattvika types of sacrifice, austerity, and charity is set right, and so on. Om Tat Sat are appellations of God. Hence, utterance of God's name is most essential at the beginning of each undertaking to give up the feelings of I and mine by remembering that everything belongs to God, they being a mere instrument. The name of God, Sat, stands for eternity or the immortal truth, and which lasts forever, and such is the essential character of God. It is also used in the sense of goodness and of a praiseworthy act. Noble deeds done without faith are fruitless, which have been declared as not, असत। 17वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने श्रद्धायुक्त पुरुषों की निष्ठा पूछी है। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाकर श्रद्धा के अनुसार ही पुरुष का स्वरूप बतलाया है। फिर पूजा, यज्ञ, तप आदि के संबंध दिखलाते हुए अंतिम श्लोक में श्रद्धा रहित पुरुषों के कर्मों को असत बतलाया गया है। इस प्रकार इस अध्याय में त्रिविध श्रद्धा की विभाग पूर्वक व्याख्या होने से इसका नाम श्रद्धात्रय विभाग योग रखा गया है। जो कोई साधारण मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा से युक्त होकर देवादि का पूजन करते हैं, क्योंकि वे शास्त्र विधि को जानते नहीं, शास्त्र विधि को जानते हुए भी अश्रद्धा पूर्वक देवादि की पूजा में श्रद्धा से युक्त हुए बरतते हैं।
वे शास्त्र की अवहेलना करते हैं, जिनमें श्रद्धा भी है और जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं, एक तो निष्काम भाव से और दूसरे सकाम भाव से आचरण करने वाले। अर्जुन पूछते हैं, उनकी जो दैवादि विषयक पूजा है वह सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है। श्री कृष्ण गुणों के अनुसार त्रिविध स्वाभाविक श्रद्धा का वर्णन करते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारानुसार स्वभाव होती है, जो सात्विकी, राजसी और तामसी होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा युक्त पुरुष क्रमशः देव, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण शास्त्र विरुद्ध घोर तप करने वालों की निंदा करते हैं। अन्य प्राणियों को और अपने शरीर को भी पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। अंतरात्मा रूप से मुझको भी कृश करते हैं। उनको तू आसुरी निश्चय वाले जान और उनका संग त्याग करने के लिए मेरा यह उपदेश है। श्री कृष्ण सात्विक का ग्रहण और राजस तामस का त्याग करने के उद्देश्य से सात्विक, राजसिक और तामस आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अंतःकरण बनता है और अंतःकरण के प्रतिरूप ही श्रद्धा भी होती है। आहार शुद्धो सत्व संशुद्धि ही। छांदोग्य उपनिषद। अंतःकरण की शुद्धि से ही विचार, भाव, श्रद्धा, विगुण और क्रियाएं शुद्ध होगी। सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन करते हैं। तदनंतर यज्ञ के 3 भेद बतलाते हैं। उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। फल की इच्छा न करने वाले यज्ञ के स्वरूप का संपादन करना ही कर्तव्य है। इससे मुझे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है, वह सात्विक यज्ञ कहलाता है। फल के उद्देश्य और पाखंड राजस यज्ञ है। शास्त्र विधि से रहित अवहेलना करके मनमाने मान, मद, मोह, दंभ और अहंकार से करना तामस यज्ञ है। शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप के स्वरूप का कथन करते हैं। शारीरिक तप देव, ब्राह्मण, गुरु, महात्मा, ज्ञानी, इन सब का यथायोग्य आदर सत्कार करना, इनको दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन, पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि समर्पण करना, जल, मृत्तिका आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन सब को शारीरिक तप कहा गया है, क्योंकि उपयुक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है। वाणी का तप। जो वचन सत्य हो और उद्वेग करने वाला न हो तथा प्रिय और हितकर भी हो, यथाविधि स्वाध्याय का अभ्यास करना भी वाणी संबंधी तप है। मानस तप। मन की निर्मलता और प्रसन्नता अर्थात भय, शोक, चिंता, व्याकुलता से रहित होना, छल, कपट, राग, द्वेष, घृणा, तिरस्कार, ईर्ष्या, वैर आदि सर्वथा नष्ट हो जाना है। इनको मानस तप बतलाया गया है। उपर्युक्त कायिक, वाचिक और मानसिक तप मनुष्यों द्वारा किए जाने पर सात्विक आदि 3 प्रकार के कैसे होते हैं सो बतलाते हैं। उपर्युक्त तपों को सात्विक आदि भेदों से 3 प्रकार के कैसे होते हैं बतलाते हैं। फलकांक्ष रहित, श्रद्धा पूर्वक और आसक्ति बुद्धि पूर्वक जो किया जाता है उस तप को सात्विक तप कहते हैं।
जो तपस्वी का स्वांग रचते हैं वह राजस तप है। तप के वास्तविक लक्षणों को न समझकर अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाकर दूसरों का बुरा चाहना यह तामसिक तप कहा जाता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को दान के 3 भेद बतलाते हैं। सात्विक दान के लक्षण। जो दान केवल कर्तव्य बुद्धि से ही दिया जाता है, जिसमें इस लोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती, यह सात्विक दान है। दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो तब अन्न और जल का दान, साधारण समय, पुण्य भूमि और पुण्य काल में अमावस्या, एकादशी आदि दान, भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्र, रोगी, अनाथ और भयभीत प्राणी अन्न, जल, वस्त्र, औषध, आश्रय के पात्र हैं। राजस दान के लक्षण। प्रत्युपकार के लिए फल के उद्देश्य से दान देना, मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा इत्यादि। परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति के लिए दान देना राजस दान है। तामस दान के लक्षण। बिना सत्कार, सम्मान से रहित, तिरस्कार पूर्वक, अयोग्य देश काल, म्लेच्छों को गौ का दान देना, ग्रहण के समय कन्यादान देना, अपात्र को दान देना, पाखंडी, हिंसा करने वाला, निंदा करने वाला, चोरी, व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाला, जुआरी, मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाला तामस दान कहा गया है। श्री कृष्ण यज्ञ, दान और तप आदि में उनका क्या सद्गुण संबंध है और इन्हें सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यह उपदेश देते हैं। परमात्मा के ओम, तत् और सत ये तीनों नाम वेदों में प्रधान माने गए हैं तथा यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मों से इन नामों का विशेष संबंध है। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण आदि समस्त प्रजा का, वेद चारों वेदों का, यज्ञ शब्द यज्ञ, तप, दान आदि समस्त शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों का वाचक है। अतएव प्रत्येक काम के आरंभ में परमेश्वर के नामों का उच्चारण करना परम आवश्यक है। ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्म पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। तत्पद परमेश्वर का नाम है। इन नाम का स्मरण करते हुए जिस परमेश्वर से इस जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी का सब कुछ है और उसी की वस्तुओं से उसकी आज्ञा अनुसार उसी के लिए मेरे द्वारा यज्ञादि क्रिया की जाती है। अतः मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, यह समझकर अहंकार रहित क्रिया की जाती है। सत अविनाशी तत्व का वाचक है, इसलिए परमेश्वर के सत नाम का प्रयोग किया जाता है। सात्विक यज्ञ, दान और तप परमेश्वर की प्राप्ति में हेतु है। ऐसा कर्म कर्ता के अंतःकरण की शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, इसलिए उसे सत कहते हैं। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति के साधन मार्ग से बाह्य होने के कारण बिना श्रद्धा वाले कर्म असत है। ऐसे शुभ कर्म भी व्यर्थ है, वे इस लोक या परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं है।